Okay, your recording is started. Recording तो हो जाएगी. कैसे स्टार्ट हो गई? तो स्क्रीन कहाँ चली गई? अब how to open the screen? चलो. सर स्क्रीन शेयर भी हो रही है. हाँ अब होगी. सर स्क्रीन शेयर हो रही, शायद वो अटक गई थी, वो माउस रुका वहीं पे. अभी ठीक है? Are you looking at the screen? यस सर, स्क्रीन दिख रही है. Okay. Okay, gentlemen, here we are interested to first draw the graph of first trigonometric function, that is y equal to sin x. Okay. Take the variables x as the angle and y as a constant value, which whatever you are going to plot on the y-axis, and x you will be taking as the angles along the x-axis. But I told you degrees you are not to take along the x-axis, rather you have to express your degree measures into the radian measures first. इसको change कर लीजिएगा. So first, okay, no doubt you write down all the values in degrees क्योंकि आपको आसानी से याद रहता है. So keep giving a difference of 30 degree each and keep on progressing, keep on getting the next values in the degrees. The first is 0 degree, 30 degree, then 31, 60 degree, 90, 120, 190, 150, 80, 210, 270 के बाद 300 आएगा, he forgot it, then write 330 and 360, that is the last value. मैं एक interval में इसको plot कर रहा हूँ, that is the period, one period. So the period of sine and cos, I am telling you again and again, you also remember, that is 2 pi, 0 to 2 pi. फिर इसके बाद जितना भी आप ग्राफ हर 2 pi से 4 pi फिर इसी शेप में बनेगा ग्राफ. It will repeat, the curve will repeat the shape. From 4 pi to 6 pi, again the graph will be repeating. So that's why we call this is the period of the graph. And after in each period the graph will repeat itself. So after writing every angle in the degree measure, now we are going to express it in the radian measures. कैसे करेंगे radian measure में? That you multiply every angle with pi by 180. So 30 degree will be changed into pi by 6, 45 will be changed into pi by 4, 60 degree will be changed into pi by 3, 90 pi by 2, 120 is 2 pi by 3, and keep on writing every angle. 180 will be pi and 360 will be 2 pi. In between every angle you can calculate, and if you repeatedly calculate, so you will be remembering their values. But nevertheless, for the accuracy, आप खुद दिमाग से लिखेंगे तो गलत भी हो सकता है, the better you calculate from your calculators. Okay, after that the author is using these fractional numbers. You may leave this column, the third column. Okay, he is writing the exact value, but you may leave it and write your values in the decimal measures, because in decimal you can plot it on the graph paper, right? Fractional number under root 3 by 2, it will be a damn difficult task for you to plot it on the graph, because we are going to make the graph. So you may leave this third column, छोड़ दीजिए. After getting these angles in the radians, or you may keep in mind now these degree measures. तो sin 30 degree, अब y की वैल्यू क्या हो रही है? y is equal to sin of 30 degree. sin 0 0 होता है, हमने लिख दिया पहले केस में. 0 degree is 0, but 30 degree is, it is 1 by 2, and that is 0.5. sin 45 is 0.7. sin 60 degree is 0.87. sin 90 is 1. And keep on getting these values, because इसमें कोई मुश्किल नहीं है, that you can get these values from calculator. You are not to memorize these values. जवानी
ये वैसे तो ये बनाई जा सकती है टेबल फॉर these values, but once this facility of a calculator is available to you, then directly get it from the calculators, but ensure you are writing a correct value. Okay, अब देखिए इसकी प्लॉटिंग शुरू हम करते हैं. Draw x and y axis. Because I'm going to draw all my graph on the right side, तो इंटरवल बना लीजिए 0 then pi and 2 pi. ठीक है, इन बिटवीन 0 और पाई के दरम्यान में पाई बाई 2 होगा और पाई और 2 पाई के दरम्यान में होगा 3 पाई बाई 2, राइट. ये हो गया हमारा 90 का फर्क है, ये 90, नो प्रॉब्लम. एंड बाकी सारी वैल्यूज लीजिए अब. 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये भी पाई बाई 6. तो इक्वल इंटरवल ले सारे बराबर. ये 45 आप छोड़ दें क्योंकि ये इक्वल इंटरवल में नहीं आ रहा, 30 का फर्क इसमें नहीं है. आप इक्वल इंटरवल से बराबर बराबर निशान लगाते जाइए. यहाँ लिखिए पाई बाई 6 है, फिर नेक्स्ट इज पाई बाई 3 है, फिर पाई बाई 2 है, लाइक दैट. अब इनके पॉइंट्स ऊपर प्लॉट करते हैं. देखिए at 0 it is 0, so the point will be the origin. At pi by 6 the value is 0.5. pi by 6 देखिए इसके यहाँ पर है and the value is 0.5. ये देखिए ये 0.5 यहाँ पे आप खुद लिख सकते हैं, you can write it 0.5. 0 और 1 के दरमियान क्या होता है, 0.5 होता है. तो against 0.5 and against the angle of pi by 3 you just plot this point. Next point is at 60 degree pi by 3 angle है and the value is 0.87. It's close to almost 0.9. तो ये 0.87 ले लिया उसने. तो यहाँ पे एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री, that is pi by 3. Then next angle is 90. 90 पर क्या आ रहा है आपका 1. This is 1. तो maximum value is +1 and the minimum value is -1. तो देखिए ये +1 ऊपर ले लिया, -1 नीचे ले लिया. This is called the range of the function. जहाँ पे y एक्सिस पे लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू जो होती है ना, जिसमें फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन. और जहाँ आप प्लॉट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक प्लॉट करें, 0 से लेकर 2 पाई तक प्लॉट करें, तो दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. डोमेन क्या है, इन द इंटरवल वेयर यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ एंड दैट वैल्यूज आर along the x-axis. जी, एक इंटरवल के लिए हमारी डोमेन होगी 0 से 2 पाई. अच्छा जी, लाइकवाइज आप प्लॉट करके चले जाएं सारी चीजें. अगला एंगल ले लें आप 90 के बाद है 120, जिसको आप कहते हैं 2 पाई बाई 3. एट 2 पाई बाई 3 अगेन 0.87. अब ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है. फिर उसके बाद 0.5, फिर 180 पे 0, 180 पे 0. एक कर्व आपका यहाँ से चला, यहाँ पीक पे पहुंचा, पीक वाज 1 एंड देन इट विल गो बैक अगेन, नीचे आएगा 0 पे आ गया. अब बाकी जो अगला हाफ है पाई से 2 पाई वो नीचे बनेगा बिकॉज द वैल्यूज आर नेगेटिव. ओके, सेम वैल्यूज बट नाउ यू विल बी कमिंग डाउनवर्ड्स. -0.5 कहाँ पर है, 7 पाई बाई 6 पर. तो पाई के बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट एंगल आ रहा है दैट इज 7 पाई बाई 6. यहाँ पे निशान लगा रही है और लिखिएगा 7 पाई बाई 6. इसके बाद एंगल है 4 पाई बाई 3, फिर ये एंगल है 2 पाई बाई 3, फिर 30 के दो और एंगल आएंगे, उसके बाद ये आ जाएगा. कीप ऑन मेंशन. ये देखिए थोड़ा सा जो डॉट बनाया है ना, ये ग्राफ पॉइंट्स है. तो अब आपका यहाँ से ग्राफ यूं शुरू होगा, पाई पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, 2 पाई पे टच कर जाएगा. ठीक है, दिस इज योर ग्राफ इन 1 पीरियड. ये साइन का ग्राफ है. याद रखिएगा साइन का ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता है. अब कहानी सिर्फ यही नहीं होगी. इन केस ऑफ साइन ग्राफ, अब अभी आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि ये साइन एक्स की जगह साइन 2x भी हो सकता है, या साइन 1/2x भी हो सकता है, या 3 टाइम्स साइन x हो सकता है, या 4 टाइम्स साइन 1/2x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगर हम बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फिगर ये जो है ना शेप यही रहेगी,
और ये मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, यानी 1 के बजाय ये 2 पर चला जाएगा और नीचे ये -2 पे आ जाएगा। ये इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड विल बी डबल्ड इफ आई एम मल्टीप्लाइंग द sin x with 2 बाहर। लेकिन अगर एंगल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर फर्क और कुछ होगा, फिर शेप इसकी बदल जाएगी। अच्छा, अगर इनके फर्स्ट कर लें sin 2x को आपसे कहा जाए ग्राफ प्लॉट करो, ये तो आपने x की वैल्यूज ले ली ना डिग्री में, फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 0 0 आएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 120, सारे ना डबल हो जाएंगे एंगल्स। ठीक है, फिर आप उनको रेडियन में चेंज कीजिए, ये आ जाएगा रेडियन। फिर उनकी वैल्यूज आप निकालें टेबल से, सॉरी कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यूज भी बदल जाएंगी। अब आप ग्राफ देखेंगे किस शेप का आ रहा है। Gentlemen, I am advising you all to keep at least 3-4 pages of graph paper once you are appearing in the final test. कोई भी ग्राफ आपने रफ पेपर पे नहीं बनाना है, that will not be acceptable. ग्राफ कभी भी रफ पेपर पे आप बनाएंगे तो एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती, वो शेप भी नहीं आएगी। तो डोंट मेक अ ग्राफ ऑन द रफ पेपर। ये बुक वाले की मजबूरी है ना, वो यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं छाप सकता है। चलिए जनाब, दैट्स इट। अब आप यहाँ पे एक लकीर लगा के, जैसे इसने लिखा है ना y = sin x, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = sin x, मेंशन कर दीजिए, टाइटल दे दीजिए, ऊपर लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y = sin x। ये आगे बता रहे हैं, ऑब्जर्व दैट एज x increases from 0 to π/2, ये देखो 0 से π/2 ग्राफ इज इंक्रीजिंग, फिर π/2 से पाई तक आता है तो ग्राफ क्या है, नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग, फिर 1 से 0 पर आ गया वापस, फिर और आगे गए हम 0 से 3π/2, सॉरी पाई से 3π/2 पर, तो ग्राफ गॉन डाउन और नेगेटिव वैल्यूज पे चला गया। पीक वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज में क्या थी, -1 डाउनवर्ड। इसके बाद फिर ग्राफ राइज करना शुरू किया गया, 2π पे आके फिर 0 हो गया। ये उसने सारी कहानी बयान की, हाउ द ग्राफ इज मूविंग अप एंड डाउन। तो स्टार्टिंग एट 2π, 0 से स्टार्टिंग एट 2π द वैल्यूज ऑफ sin x रिपीट। इसके बाद अब अगर हम 2π से फिर स्टार्ट करें तो बिल्कुल यही शेप यहाँ से जैसे किया था, तो यहाँ से भी इसी तरह ही ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर क्रॉस करेगा और नीचे से टच करेगा। बिल्कुल इसको आप कट पेस्ट कर दें और यहाँ पे जोड़ दें 2π से आगे, 2π से 4π तक इसी तरह शेप आएगी, फिर 4π से 6π तक फिर यही आएगा। तो the graph will keep on repeating after every 2π interval. That's why we say 2π is the period of the sin x. Similarly, 2π is the period of cos x. Similarly, 2π is also the period of secant and cosecant x. But pi is only pi, and pi is period of sine and sorry for tangent and cotangent x. Okay, next graph is this cos graph. देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, this is in front of you, ये आपके सामने है। चलिए, to obtain the graph of y = cos x, we construct the following table. Exactly on the same lines, look at the screens. X is your angle, 0 30 डिग्री छोड़ दे, 45 30 के बाद 60 90 30 30 का फर्क लेते हैं। एंड ये देखिए यहाँ पे 360 पे रुक गया और यहाँ पे 300 भी ले रहा है, ये पिछले केस में वो भूल गया था, 270 के बाद 300। You're noting it? Then express all the angles in the radian measures। ये अगली स्लॉट पे लिखा हुआ है, x जो है वो रेडियन पे, 0 30 डिग्री is π/6, 60 डिग्री is π/3, 90 is π/2, and likewise write all the angles up to 2π. Your last angle is 2π for cos x. After that, I told you, do not write these values because these are in the fractional number, you can't plot them. Go directly up to the last row, that is the angles of cos of x.
cos x की जो ये वैल्यूज हैं डेसिमल्स यू राइट डाउन हियर। तो cos 0 is 1, वहां पे sin 0 0 था, but here cos 0 will be 1, remember. Similarly cos of pi by 6 जो कि 30 डिग्री होता है वो 0.86 होता है, cos 60 degree will be 0.5, cos 90 will be 0, cos 120 will be minus 0.5 and so on and so forth like that. अब देख रहे हैं कि along the x-axis the author is not taking angles in the degrees, ये सबको आपने रेडियन में लिखना है। देखिए पिछला हाफ बनाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्लॉट आवर ग्राफ फ्रॉम 0 to 360 डिग्री का मतलब है हम 0 से 2 पाई तक जा रहे हैं रेडियन में। तो मेंशन ऑल द वैल्यू 0, यहाँ पे लिखें पाई बाई 3, फिर पाई बाय पहले वाला आता है पाई बाई 6 आता है, फिर पाई बाई 3 आता है, फिर पाई बाई 2, इसके बाद क्या आएगा पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 6 पाई। ओके, ये सारे एंगल्स मेंशन कीजिएगा जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, all these angles you mention along the x-axis with equal intervals, बराबर बराबर। तो आप स्केल रखिएगा निशान लगा के। अब देखिए 0 पे cos की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो एट 0 cos वैल्यू इज रीचिंग इट्स पीक वैल्यू दैट इज 1, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री एंगल पे 0.86, तो थोड़ा सा नीचे आ गया ये 0.8, और नीचे आएगा 0.5 आ जाएगा, फिर और नीचे आएगा 0 पे आ जाएगा, एट 90 डिग्री इट इज 0। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे पाई पे ये -1 हो जाएगा, ये लोवेस्ट वैल्यू है, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा एट 3 पाई बाय 2 एंगल विल बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको ऊपर ले जाएंगे 2 पाई पे जाकर ये पीक पे आ जाएगा दोबारा एट 1, द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई एंड cos 0 दोनों 1 होते हैं। ये देखिए cos 2 पाई पे आंसर इज कमिंग टू बी 1। तो आपका ग्राफ बस यहाँ पे 2 पाई पे रुक जाएगा, एक इंटरवल के लिए आगे भी ना बनाए और इसके लेफ्ट पे भी ना जाए। तो योर ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस, इट विल मूव लाइक दिस, जैसे मेरा कर्सर घूम रहा है, और पीक पे y इक्वल टू 2 पाई पे जाकर रुक जाना है एंड दैट्स इट। ओके, अब आपको क्वेश्चन चेंज करके दिया जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। साइन y इक्वल टू cos x है तो cos 2x दे दिया जाएगा, या 1/2 टाइम्स cos x दे दिया जाए, या 3 टाइम्स cos x दे दिया जाए। तो किसी चीज से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंगल को भी या कोफिशिएंट को भी। अगर कोफिशिएंट को करेंगे तो इसी cos के शेप तो यही रहेगी, सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखिए ये बजाय 1 पे आने के फिर ये 2 पे चला जाएगा y एक्सिस पे, और नीचे -2 पे चला जाएगा, तो ये भी -1 पे आ गया, लीस्ट वैल्यू विल बी -2, फिर ये वापस आके 2 पे आ जाएगा। ओके, एम्पलीट्यूड विल बी डबल्ड। और I'll show that sample question. ये देखिए, look at your screens. Now what the author has done, he has sketched the graph of y equal to 2 cos x. Cos x he has just plotted, and what is the difference that I wanted to tell you, that write the angles in radians, okay, with every angle with a difference of 30 degree. 45 वाले को आप बेशक छोड़ दें, 0, this is pi by 6, then pi by 3, then pi by 2, keep on adding 30 degree difference, you reach up to 2 pi. the angles, अब देखिए यहाँ पे जो किया है ना उसने एक काम कि जो आपके पास एंगल्स था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। look, the values were here, these values I asked you, do not write it, ये जो नीचे आपके पास मौजूद है इन द डेसिमल्स, ठीक है, डोंट टेक फ्रैक्शनल नंबर्स। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वैल्यू भी 2, इसको डबल कर दें, इसको डबल कर दें, 0.5 विल बिकम 1, 0 विल रिमेन 0, -0.51, so 2 से मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम -1, this will become -2. okay, so keep on multiplying every value with 2 because 2 is outside. अब देख रहे हैं ना इसके अंदर, here y is equal to 2x, so get all these values, इसको हटा दें डेसिमल, इसको डेसिमल में लिख लें, फ्रैक्शन या सर्ड्स में अंडर रूट में हटा दें,
take its decimal values from the calculators. Now you see the graph. I wanted to tell you, पहले हमारा 1 से लेके -1 तक ग्राफ बन रहा था, ठीक है ना, यूं आ रहा था और यहाँ पे जाके वापस जा रहा था. But now amplitude is doubled. At 0 this is reaching 2. देख रहे हो ना, इसी तरह 2 पाई पे ये 2 पाई, इस पे फिर 2 आ गया. हाँ, at pi the value is -2, pi पे -2 आ गया. And at pi by 2 it is 0, and at 3 pi by 2 it is 0. So very easy to draw the graph. ये बाकी plots भी आप करते जाइएगा. This is your 30 degree, this is your 60 degree, this is your 90 degree. So keep on finding these values also, and then join these points. You'll get the graph of y equal to 2 of cos x. Anybody having any problem in that? किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो बस पूछ लें आप. Getting it? सर कॉस का ग्राफ, जी? कॉस का सर, कॉस का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है? कॉस का उसका ग्राफ y एक्सिस पे 1 से शुरू होता है अगर सिर्फ cos x है. अच्छा, सिर्फ कॉस है तो अगर 2x होगा तो 2 से शुरू होगा, या फिर 3 होगा तो 3 से शुरू हो जाएगा. ठीक है, कोई इसकी हार्ड एंड फास्ट लिमिट नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. अगर 3 cos x है तो इट विल स्टार्ट ऑन द y एक्सिस बट फ्रॉम 3. इफ इट इज जी। सिंपल cos x तो 1 से शुरू होगा, यानी पीक वैल्यू विल बी 1. अभी आपने देखा नहीं है, पीछे नोट नहीं किया. लुक हियर, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x. नजर आ रहा है? तो यस सर, व्हाट इज द पीक वैल्यू? 1 है. और वन है, लोएस्ट, हाँ और लोएस्ट वैल्यू क्या है? -1 है. अगर मैं इस cos x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब हमारी पीक वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, और लोएस्ट वैल्यू -2 हो जाएगी. -2 अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टाइम्स ऊपर नीचे हो जाएगा. ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़ा हो जाएगा. यही तो फर्क आपको दिखा रहे हैं. ये देखिए, आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये बैठे बैठे सिर्फ देखने और पढ़ने से नहीं आता. दैट यू हैव ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर्स, या बैठ के कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो जरूर कीजिए. ग्राफ ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब सुने, हमारे पास जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज y इक्वल टू टेंजेंट x. see the graph of y equal to tangent x. एक अहम और इम्पोर्टेंट ग्राफ है ये, that I'm going to discuss. थोड़ी देर पहले I had been talking about the asymptotes. What are the asymptotes? Asymptote हर वो पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर कि the moment if we substitute those points in the equation of the function, जैसे y equal to tangent x ये इक्वेशन है ना फंक्शन की, तो x की जगह अगर मैं रखूं π/2 तो टेंजेंट π/2 जंप्स टू इंफिनिटी. तो गोया π/2 क्या है? हमारा एक वर्टिकल एसिम्पटोट. इसी तरह -π/2 पे भी एक वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा. फिर 3π/2 पे भी यही बनेगा वर्टिकल, -3π/2 पे भी बनेगा. तो यू मस्ट नोट द टेंजेंट का जो ग्राफ है वो कहाँ कहाँ जंप ले रहा है अप टू इंफिनिटी. तो दैट द ऑथर वांट्स टू टेल यू that at every odd multiple of π/2 प्लस माइनस के साथ, at every odd multiple, odd समझते हो क्या नंबर होता है? क्या नंबर होता है? anybody you can tell me what is odd number? जल्दी बोलो. बोलो भाई, आप लोगों से पूछा जाए तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं. सर जो 2 से डिवाइड नहीं होता. जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, दे आर द ऑड नंबर्स. कौन कौन से होते हैं? बताओ नंबर, वो कौन से हैं? सर 3 होते हैं और 5 होता है. 1 3 5 7 9. हाँ, शुरू से बताओ. 1 3 5 7 9. इन सबको अगर मैं π/2 से मल्टीप्लाई करता जाऊं तो ये क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं हम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. यानी प्लस माइनस भी साथ साथ लगा देगा. तो प्लस माइनस 1π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 प्लस माइनस 7π/2. ये सब क्या है?
odd multiple of pi by 2. ठीक है, in on all these points for tangent x the graph jumps to infinity. समझ में आ गया? तो टेंजेंट एक्स का ग्राफ देखिए, साइन एक्स का ग्राफ कहीं भी इंफिनिटी पे नहीं जा रहा था, इट वाज ए कंटिन्यूअस ग्राफ। लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, कहाँ कहाँ रुक जाएगा ग्राफ, यानी ये मैंने कहा था ना, these vertical asymptotes are just like the walls, the graph cannot penetrate nor cross that wall. उसके पीछे पीछे रुक जाएगा, उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाएगा, but it will go up to either plus infinity or up to minus infinity along the y-axis. y-axis से पैरेलली लाइन होगी तमाम, इनको कहते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो द टेंजेंट ग्राफ हैज द वर्टिकल एसिम्पटोट्स एट, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये क्या लिखा हुआ है देखो, द डैश्ड वर्टिकल लाइन, से डैश्ड वर्टिकल लाइन को ही एसिम्पटोट कहते हैं। कहाँ आ रही है, प्लस माइनस 1 पाई बाय 2, फिर 1 के बाद आता है 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हर एक में आएगा, उसको और नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। At every these points of x, the function will jump to infinity of the tangent. टेंजेंट का जो ग्राफ बनेगा हर इस पॉइंट पर वो इंफिनिटी करेगा, इंफिनिटी तक जंप करेगा, एंड सो दीज पॉइंट्स आर नोन एज द वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक है, इसको हम डैश लाइन बनाते हैं, इनको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। अभी देखिएगा, ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट ग्राफ है, किसी टीचर ने इसको पेपर में आप लोगों को दिया भी था मिड टर्म में, उस वक्त हमने नहीं पढ़ा था, हमारे टॉपिक्स जरा आगे पीछे चल रहे थे। अब देखिए आप सबसे पहले काम कीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, और जहां जहां ये टेंजेंट का ग्राफ जंप करेगा ना, टेंजेंट बना रहे हो ना, तो वहां वहां आप वर्टिकल एसिम्पटोट बना लें। देखो, चाहे वो प्लस पाई बाय 2 है, चाहे माइनस पाई बाय 2, चाहे प्लस का 3 पाई बाय 2 है या माइनस का 3 पाई बाय 2, इन तमाम पर क्या आपने बनाने, डॉटेड लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर लें। इस वर्टिकल लाइन को ही हम कहते हैं एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट। ये देखो यहाँ लिखा होगा कहीं, कुछ छोटा हो जाता है साइज। Look here. Now I'm sketching the graph of the y equal to tangent x. क्या करना है हमने कि आप पहले तो वर्टिकल, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे मार्किंग कर लें वर्टिकल एक्सिस पे भी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल पे तो अपने एक्स एक्सिस पर वही फर्क ले लें, 30 30 का 0, फिर पाई बाय 6, फिर पाई बाय 3, पाई बाय 2, फिर 3 क्या होता है 3 पाई बाय 2, लाइक दैट सब कर लें आप जितने। आप माइनस पाई बाय 2 से शुरू कीजिए, ठीक है, टेंजेंट का ग्राफ माइनस पाई बाय 2 से शुरू करें, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, इसका एक पीरियड है यहाँ पे, दिस इज 1 पीरियड। अच्छा, अब 2 पीरियड में बना रहा है, पाई बाय 2 से आगे 3 पाई बाय 2 तक जा रहा है, करें। अब लेट्स सी दी वैल्यूज फ्रॉम द टेबल, इसने टेबल तैयार की है, लेकिन ये टेबल आपके सामने देखें। Okay, if you are taking the radians as 0, pi by 6, then pi by 3, pi by 2 again। अच्छा, ये माइनस वैल्यूज इसने लेफ्ट बाद में ली है, हालांकि इसको माइनस वैल्यूज इधर लिखनी चाहिए। आप इधर से शुरू कर दें, माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 2, उसके बाद 0, फिर राइट साइड पे लिख लें ये पॉजिटिव वैल्यूज। चले, नेवरदलेस आपने सबको प्लॉट करना है। अब 90 डिग्री पे ये अनडिफाइंड, इसका मतलब है इंफिनिटी। अनडिफाइंड को क्या कहते हैं, इंफिनिटी। सिमिलरली माइनस पाई बाय 2 पे ये भी अनडिफाइंड है, अगेन द फंक्शन इज जंपिंग टू इंफिनिटी, यहाँ भी इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पे नीचे जाएगा और यहाँ प्लस इंफिनिटी ऊपर चला जाएगा। ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना, ये देखें आप, पहले 0 था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर बड़ा,
इंक्रीज कर रहे हैं तो ये प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा। यहाँ पे ग्राफ नीचे होता जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट π/2 या ये -π/2 इसके जो पड़ोस में जो होगा ना, वहां पे फंक्शन बहुत तेजी से जंप करके कहा जाएगा अप टू इन्फिनिटी। मैंने कहा था ना, इन एसिम्प्टोट्स के साथ साथ कर्व जो है ना इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है। तो इन द नेबरहुड ऑफ x equal to π/2 and x equal to -π/2, the values of tangent x become numerically large, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, एज कैलकुलेटर विल रेडिली कंफर्म, कैलकुलेटर में आप डाल के देखिएगा। तो दी डैश्ड वर्टिकल लाइंस at these are appropriate by the graph and call the vertical asymptotes। ये देखिए मैंने कहा था ना, उसका नाम आपके सामने लेगा। इन पॉइंट्स पर आपने वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बनाने यानी डॉटेड लाइन लगानी है पैरेलल टू द y axis। Although the table of values does not extend beyond plus or minus π/2, the values can be seen to repeat themselves, indicating that the function y equal to tangent x has a period of pi। मैंने बताया था ना, टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड पाई है, ये आपके सामने लिख दिया उसने। साइन कोसाइन सीकेंट कोसीकेंट उनके पीरियड 2 पाई है, टेंजेंट कोटेंजेंट का पीरियड पाई है। इसके बाद वो रिपीट करता है, ग्राफ दोबारा उस इंटरवल में रिपीट होता है। अब देखिए टेबल आपके सामने है, 0 पे 0। पहले हम नेगेटिव वाला ले लें, तो नेगेटिव वाला पोर्शन बना रहे हैं आप। -π/2 उधर होगा, फिर उसके बाद -π/3 बड़ा है, -π/4 उससे बड़ा है, -π/6 उससे बड़ा है। ये कैसे बना है ये? अब चलें पहले पॉजिटिव हाफ में आ जाए, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। उसने ये अगर ओरिजिन है तो राइट साइड पर प्लॉट कर रहा है। 0 के बाद ये 30 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, यानी π/6, π/3 और फिर π/2। ये आपके पास 3 वैल्यूज आएंगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी। π/2 से करीब करीब यानी आप करेंगे 90 पे, तो ये अनडिफाइंड आएगा। तो 90 से थोड़ा पहले अगर आप ले लें, क्या वैल्यू लेंगे, 89 डिग्री ले लें, तो आप देखिएगा 89 पे बहुत बड़ी वैल्यू होगी ऊपर जाके। या 70 डिग्री ले लें, 70 तो बहुत दूर हो जाएगा, 90 से करीब करीब 85 लेके देख लीजिएगा तो बड़ी वैल्यू आएगी। उसके बाद पीछे आएंगे नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तो इट विल गो डाउनवर्ड्स, ग्राफ नीचे आएगा। मैंने कहा था ना, द मोमेंट इट विल रीचिंग टू -π/2 इट विल कम डाउनवर्ड्स, और ये ग्राफ अब नीचे चलता जाएगा इस लाइन के साथ साथ, और -इन्फिनिटी पे जाएगा, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी पर जाएगा। यही चीज रिपीट होगी। एक पीरियड कंप्लीट हो गया, अब π/2 से 3π/2 दूसरा पीरियड है, ये भी पाई का इंटरवल बन रहा है। तो बिल्कुल इसी डिजाइन में ग्राफ बनेगा, दोबारा से पाई पर यहाँ पे क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को और ऊपर चला जाएगा। सो इन एवरी इंटरवल द ग्राफ, देखिए अब यहाँ पे फिर यहाँ से आगे जा रहा है और ऊपर ले जाएंगे तो हम फिर ये ग्राफ इस तरह से ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल इसी डिजाइन में इधर से भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ से कैसे ग्राफ आएगा, यहाँ से नीचे जाएगा और इधर जाके फिर ये पीछे हो जाएगा ऐसे। ओके, तो दिस इज द वे दिस यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टेंजेंट x। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। टेंजेंट x के और भी कुछ क्वेश्चन है। वो टेंजेंट में सिर्फ ये जो फिगर इधर से इधर जा रही है, ये उल्टी हो जाएगी, यहाँ से यूं हो जाएगी, देख लें। ये पहले हमारा इस इंटरवल में हमारा टेंजेंट का ग्राफ ऊपर से यूं आ रहा था, यहाँ पे इस साइड से इस डिजाइन में थोड़ा सा उसको यानी एक 180 डिग्री ट्विस्ट दे दें, तो उसको ट्विस्ट देने के बाद ये चीज बन जाएगी आपकी। ये सब बच्चे आप लोगों ने ग्राफ इंटरमीडिएट में सीखा हुआ है। इट इज योर सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज। अब यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा था
ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2 sin x, यानी एम्पलीट्यूड उसका डबल हो जाएगा साइन। क्वेश्चन 2 में 3 टाइम्स cos x। अब मैंने 2 cos x किए हैं तो 3 का मतलब एम्पलीट्यूड 3 हो जाएगा उसका। तीसरा क्वेश्चन है माइनस साइन x। अब देखिएगा इसमें चेंज क्या आती है, माइनस से इसकी शेप उल्टी हो जाएगी, अपसाइड डाउन हो जाएगी। पहले हमारा साइन का ग्राफ ऊपर से यूं आ रहा था, अब नीचे से ऊपर चला जाएगा साइन माइनस लगाने से। तो ये वो है अब हाफ ऑफ साइन एक्स, ये 2 cos 3x। देखिए ये अच्छा ग्राफ है। इस तरह का सवाल है ये y इक्वल टू 1/3 cos 2x, या क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़े से देखने में बस हैं जरा सा लग रहे हैं कि मुश्किल सा हुआ, मुश्किल नहीं हुआ। आप पहले x को निकाल लें, ठीक है, x की वैल्यू रेडियन में लिख लें, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, हर एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस वैल्यू ले लें। जो आंसर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, वो y का कॉलम बनेगा आपका, y का इस तरह से तमाम वैल्यूज ऑफ y। तो x तो वही होगा π/3, जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करें वो cos पाई बन जाएगा। cos पाई होता है -1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट आंसर विल बी -2। ये तो मुझे तो याद है, लेकिन आपको तो ये वैल्यूज याद नहीं है, तो यू हैव टू कैलकुलेट, यूज योर कैलकुलेटर्स। ओके, कैन यू डू दिस ग्राफ्स? कर सकते हो या नहीं कर सकते, पहले ये बताओ। हेलो, खामोशी तारी है, पब्लिक सो गई जाकर। जहां सवाल पूछो एक सांप आता है जो सबको सूंघ के चला जाता है। जेंटलमैन टेल मी। अच्छा एक काम करें आप, ये क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू 2 cos 3x। देखिए इसकी टेबल बना के दिखाया अभी आपको। ऑल ऑफ यू पहले तो आप वही डिफरेंस लेते जाए, 30 0 से शुरू करें, 0 देन 30 देन 60 90 एंड सो ऑन अप टू 2 पाई पे जाएगी। ऑल ऑफ यू बना सकते हैं? ओके सर। आप बनाओ, शाबाश। अभी टेबल बना के मुझे आप बताएं। कीप डूइंग प्लीज, गुड, शाबाश। पहले देखिए मैं आपके सामने वो स्क्रीन खोल देता हूँ ताकि आपको कॉस के बारे में जो वैल्यूज हमने निकाली थी ये थी। ठीक है, अब आपका दीज आर द एंगल्स, और अब पहले 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, पहले एंगल लेंगे आप इसका। कितना एंगल ले रहे हैं हम? 3 ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसका 3x बनाइए। ये x है, मल्टीप्लाई दिस x विथ 3, फिर उसका cos लेके 2 से मल्टीप्लाई करें। अब इक्वेशन आप ध्यान में रखिए, व्हाट इज इक्वेशन आई गिव यू? ऑल ऑफ यू राइट डाउन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू डू। इसकी आप टेबल बनाए अभी, that is y equal to 2 cos 3x. First you will make the angle 3x, then you take its cos, or in the end you multiply it with 2, so you make 3 rows। पहले सिर्फ एंगल x की लिखें रेडियन में, पहले डिग्रीज में लिख लें, फिर उसको रेडियन में लिखें, फिर उस एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करें, तमाम एंगल, उसका फिर cos लीजिए, जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y। Okay, proceed like this. All of you please use your calculators, make the table and मुझे टेबल बता दीजिए। ग्राफ तो फिर आप प्लॉट कर ही लेंगे, but at least I should know how accurately you are calculating your table. Yes, gentlemen, go ahead.